بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عزیز طالبات اور طالبات کے والدین اور مہمانان خصوصی اور معلمات اور یہاں پر خوش دلی سے آئے ہوئے مہمانان خصوصی اور کافی مہمان جو دوسرے فلور پہ، تیسرے فلور پہ، چوتھے فلور پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، صرف طالبات کے والدین کو یہاں الاؤ کیا گیا ہے۔ ان سب کو میں آج کا ہمارا 25واں سالانہ اجلاس کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں۔ پہلے دن سے آپ سب کا ساتھ رہا، پہلے دن سے آپ سب کی اس میں مددیں رہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد سے آج یہ ہمارا سالانہ اجلاس جو ہے 25واں سال کا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ سب کے سامنے کنٹینیوسلی چل کر اللہ رب العالمین نے آرام سے آسانی کے ساتھ یہ کام کو انجام دینے کی اللہ نے توفیق دیا اور ہمیں قبول فرمایا۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کو لائق اور زیبا ہیں، جس رب نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا اور جس رب نے ہمیں دین کی ہدایت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اس کو بہت بڑی بلڈنگ دے دوں گا اور اس کو بڑی کائنات دے دوں گا اور اس کو گولڈ دے دوں گا، زیور دے دوں گا۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ اللہ عطا کر دیتے ہیں اور دین کی توفیق اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ، دین کی توفیق عطا فرمائی۔ اور آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عالمہ، معلمہ، فاضلہ، حاکمہ، بہت سارے جو بیٹھے ہیں، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ انڈیا کا کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں ہے جس میں سے ہمارے پاس ایک کم سے کم لڑکی جو ہے یہاں آ کر پڑھی ہو اور یہاں تعلیم حاصل کی ہو۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ سب لوگ جب تروپتی کے لیے سوچتے ہیں تو لوگ کچھ الگ سوچتے ہیں، مگر یہاں الحمدللہ ایک اسلام کا ادارہ ہے، دینی ادارہ ہے، جس کے اندر سارے انڈیا سے ہمارے بچے آ کر پڑھتے ہیں، مگر ہمارے بچے سارے ورلڈ کے اندر جا کر دین کا کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے وہ کنٹری جو میں کبھی وزٹ ہی نہیں کی، وہ کنٹری جو میں کبھی دیکھی ہی نہیں، وہاں سے جب مجھے میل آتا ہے کہ آپ کے یہاں پڑھی ہوئی بچی ہمیں یہاں پڑھا رہی ہے، اتنے لوگوں کو فیضیاب کر رہی ہے، بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ کافی بڑا خواب تھا جو اللہ نے پورا کیا۔ اس میں آپ سب کی مدد میرے ساتھ رہی پہلے دن سے۔ ایسا نہیں کہ پہلے دن سے سینٹرل اے سی کا ادارہ تھا، پہلے دن سے بہت سارے سہولیات تھے، یہاں تک کہ جو میری پہلی کلاس نکلی تھی وہ اتنے چھوٹی جگہ پہ رہ کے پڑھتے تھے جہاں پر کوئی سہولیات نہیں تھی۔ 5 سال انہوں نے تکلیفیں اٹھائے، پڑھائی پڑھے، ماشاءاللہ پہلی بیاض اللہ نے قبول کی۔ تو اس کے بعد آج تک 12 بیچز نکلے، جو اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو سنتے ہوئے ہماری بہنوں کی مدد کے ساتھ اللہ نے اس ادارے کو ہمارے بھائیوں کی مدد کے ساتھ اتنی دور تک پہنچا دیا۔ آج ماشاءاللہ مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ کا سیلیبریٹ اگر کہیں پر چلتا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے ادارے کے اندر اللہ کی مدد سے ہمارے مدنی علماء جو یہاں بیٹھے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اس سیلیبریٹ کو کمپلیٹ سے چلاتے ہیں۔ یہ بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ عزیز طالبات، عزیز مہمانان خصوصی، میں آج یہ بات ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بندے اپنا کام کرتے ہیں
उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करते हैं, आजमाते हैं। समझ में आ रही है बात? अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करते हैं, उनको आजमाते हैं। अल्लाह ताला जब बंदा उसका काम करने लगता है तो सारे नबियों के वाक़या कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिक्र किया। कौन से ऐसे नबी हैं जिनकी आजमाइश नहीं हुई? उनकी आजमाइशें बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें, बड़े तकलीफ वाले आजमाइशें, मगर हमारे आजमाइशें उनके सामने कुछ मतलब ही नहीं रखते। मगर अल्लाह जब आजमाता है हम साबित कदम रहते हैं। क्या कहकर साबित कदम रहते हैं? वो तवक्कलतु अल्लाह व कफा बिल्लाहि वकीला। जो अल्लाह की जात पर तवक्कल कर लेता है, अल्लाह की जात पर तवक्कल करके उस पर भरोसा करके जो है कायम हो जाता है, अल्लाह फरमाते हैं कि कामयाबी तुम्हारे लिए जरूर होगी। तो इंशाअल्लाह आज ये कामयाबी का मकसद यही है कि सिर्फ तवक्कलतु अल्लाह व कफा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह अपने फातिह में फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान अंतुमुल फुकरा, ऐ इंसानों तुम सब के सब फकीर हो। अल्लाह ने सारी इंसानियत को पुकार के कहा, अंतुमुल फुकरा, तुम सब के सब फकीर हो। चाहे यूनुस अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, मूसा अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, और कोई नबी क्यों ना हो, तुम सब के सब फकीर हो। मगर गनी कौन है? कौन है गनी? वल्लाहुल गनियुल हमीद। तुम्हारा अल्लाह जो है बहुत बड़ा गनी है और हमीद है। जो लोग अपने आप पर भरोसा करते हैं कि मैं बहुत बड़ी टैलेंटेड हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा टैलेंट है, मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब कौन होते हैं? मेरे पास बहुत टैलेंट है, मगर जो मेरा अल्लाह मदद करेगा तो मैं कामयाब, वो लोग कामयाब होते हैं। और ध्यान के बैलेंस पर भरोसा करने वाले कामयाब नहीं होते, मगर अल्लाह पर भरोसा करने वाले क्या होते हैं? कामयाब होते हैं। और अजीज तालिबा, अल्लाह ताला इसके नमूने पेश किए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है कि लड़की, पहले दिनों में जो हमारे बचपन में जब लड़की पैदा होती तो बाप शर्माता हुआ गलियों में भागते थे। वो खबर देने के लिए, हमारे रिश्तेदारों में ऐसे होता था कि वो खबर देने के लिए कि मुझे लड़की पैदा हुई है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। और कई लोग लड़कियों को माँ के पेट में जब उसे स्कैन करते हैं, अगर पता चलता है कि लड़की है तो उसको जो है अबार्शन करने का हुक्म दे देते हैं घर वाले, बाप, ससुराल, सब लोग। क्यों? कि उनके पेट में लड़की है। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब ये दौर ऐसा लाया है कि लड़की को बाप फख्र से कहने लगा है कि मेरे घर में लड़की पैदा हुई है। और एक जमाना ऐसा था कि उस जमाने में जब लड़की को शादी करना होता तो बाप बड़े तकलीफें उठाते थे, क्योंकि वो लड़की का बाप है। हमारे सामने 2009 में एक वाकया हुआ, करपे में एक शादी हुई। वो शादी में सारे लोग जमा हुए, यहाँ तक के दूल्हे ने बाप इज्जत नहीं किया करके उस लड़की को छोड़कर चले गया, तो वो लड़की खुदकशी करके वहां का वहां अपना जान दे दी। क्यों? कि उसको दीन मालूम नहीं था, तालीम मालूम नहीं थी, अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं मालूम था। मगर आज लड़की होने पर सारे लोग अपने कौम में फख्र करते हैं कि हमारे पास लड़की पैदा हुई है, बड़ी खुशी के साथ बताते हैं। क्यों? कि तारीख पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां थे, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिसको अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को बना के पैदा करके लड़का नहीं बल्कि 4 लड़कियों को दिए। और हमारे नबी ने बड़े प्यार से उनको परवरिश किए। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में 4 लड़कियां हो वो बाप बड़ी मोहब्बत से उनकी परवरिश करता है, उनको दीन की तालीम सिखाता है, अल्लाह की तालीम सिखाता है। जन्नत में मई और वो शख्स जो है इस तरह रहेंगे कि दरमियान की उंगली और कलीमे की उंगली कितना करीब रहती है, उस हिसाब से। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाते हैं, जब मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे एक बेटा देंगे तो मैं इस बेटे को तुम्हारी राह में कुर्बान कर दूंगी।
तुम्हारी राह में छोड़ूंगी, तुम्हारा काम कराऊंगी। तो कुरान मजीद कहता क्या है, जब लड़की को देखे तो वो परेशान होकर रह गए, अल्लाह मैंने तो लड़का मांगा था, अगर आप लड़का देते तो मैं दीन का काम करा लेती थी या तुम्हारी राह में छोड़ देती थी, मगर आपने तो मुझे लड़की दे दी। अल्लाह क्या फरमाते हैं, ये मरियम तमाम जहां की औरतों से पाक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने किसी औरत का नाम कुरान मजीद में नहीं लिया सिवाय मरियम अलैहिस्सलाम के, और अला निसाइल आलमीन कहा, सारे आलम में मरियम अलैहिस्सलाम जो है एक पाक औरत है। अल्लाह फरमाते हैं ये जो बेटी तेरे कोख में पैदा हुई है ये 1000 लड़कों से तेरे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो आज आप लड़कियां हो, कमजोर नहीं हो, आप बहनें हो, आप मां हो, आप बेटी हो। एक औरत अगर चाहती है तो घर के 4 अफराद को वो जन्नती भी बना सकती है, वो जहन्नमी भी बना सकती है, वो सही रास्ते में भी ले जा सकती है, वो बुरे रास्ते में भी ले जा सकती है। इसलिए मेरे अजीज तालिबा, मैंने हमेशा आपको अपने बच्चे समझा, और अपने बच्चे समझते हुए मैंने ये समझा कि आप एक लड़की नहीं बल्कि एक कौम हो, आप एक लड़की नहीं बल्कि आप एक देश हो, आप एक लड़की नहीं आप पूरी दुनिया। आप चाहती हो तो सब कुछ कर सकती हो, आप चाहती हो तो बहुत कुछ कर सकती हो। जब पहले दिनों में मैंने ये काम शुरू किया तो कितने लोगों ने क्या क्या कहा कि औरत ये नहीं कर सकती, औरत तिजारत नहीं कर सकती, औरत इदारा नहीं चला सकती। हर बात पे रहे हुए उन सब की गवाह हमारे पुराने भाइयां, हमारी बहनें जो यहाँ बैठे हैं, हर बात पे रहे हुए, मगर दलाली को पेश करते हुए खूबसूरत अंदाज में मैंने ये काम किया। तो आज वो कामयाबी का मंजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने दिखाया है। मैं ये नहीं कहती कि हमारी तरफ से हुआ है, ये काम अल्लाह की मदद की तरफ से हुआ है। बहुत सारे लोग, मालूम है ना अम्मी के बारे में, बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी अम्मी तो कुछ भी जानते नहीं माशाअल्लाह, मगर आप इस तरह से करते हैं। जब अल्लाह चाहते हैं तो एक माँ के पेट से एक बच्चे को पैदा करते हैं और उससे दीन का काम लेना चाहते हैं तो कोई जमाना उसको रोक नहीं सकता। अल्लाह ने इस तरह से जो है ये दीन का काम ले लिया। आज माशाअल्लाह हमारे इदारे से 5000 से ज्यादा तालिबात पढ़ के फारिग हुए हैं कंटिन्यूसली माशाअल्लाह। किसी बैच में 100, किसी बैच में 80, किसी बैच में 200। अब जब पिछली बार में हादसा से गुजर कर आई थी तो जब 300 लड़कियां फारिगात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चियां टोटल जाकर अल्लाह का काम करते हैं, इस्लाम का काम करते हैं। और माशाअल्लाह कल हमारे मुअल्लिमात बता रहे थे कि अब जितने भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो पूरे हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में पढ़ के जो फारिग हुए वो बैच है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआएं हैं। तो मैं आज चंद बातें जो है आपको यही बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात अल्लाह के ऊपर तवक्कल और तौहीद का होना बहुत जरूरी है। और अल्लाह पर जो बंदा तवक्कल कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाते हैं। वो तवक्कल अल्लाह वो कफा बिल्लाहि वकीला, जो अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाते हैं। हम सब आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और उसमें पढ़ते हैं, अब हम कुरान मजीद को ये समझ लिया पढ़ के फूंकने के लिए, दम करने के लिए, तावीज़ बांधने के लिए, अगर हेल्थ अच्छा नहीं तो कुरान है और तबीयत अच्छी नहीं तो कुरान है। कुरान मजीद इसके लिए नाज़िल नहीं हुआ, किस लिए नाज़िल हुआ? अमल करने के लिए, ये कानून को नाफिज करने के लिए। वमा हुआ इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ये सारे आलम के लिए नाज़िल हुआ। ये ना मुसलमानों के लिए नाज़िल हुआ, ना हिंदू के लिए नाज़िल हुआ, किसी कौम के लिए नाज़िल हुआ। ये कुरान मजीद जो है पूरे दुनिया के लिए नाज़िल हुआ। मतलब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसको हमने नाज़िल किया है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कौन ले लेगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ले लेगी। कुरान मजीद को नाज़िल करके इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ले लेगी। तो अजीज तालिबात, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये देखिए आपकी लिखी हुई किताब है ना, आपके लिए लिखी हुई किताब है, बहुत अच्छे उन्वान इसके अंदर है। इसमें कमी पेशी हो सकती है ना, क्योंकि तुम फरिश्ते नहीं हो। इसके लिखने में कमी पेशी, सुनने में कमी पेशी, और एक बच्ची एक सोचती है वही आयत को लेकर, और एक बच्ची और एक सोचती है, और एक मुअल्लिमा एक सोचती है, एक मुअल्लिमा और एक सोचती है। करेक्ट? उसी तरह से
ने भी किताबों को लिखा है, बुखारी को, मुस्लिम को, मिशकात को, हदीस को, सब किताबों को लिखे, मगर सोचने का अंदाज क्या था, उन्होंने अपने अपने हिसाब से सोचे। मगर कुरान में सोच चलती है, नहीं चलती। अगर यहाँ एक आयत में ज़ेर ज़बर कलम बोल दे तो एक छोटा सा बच्चा उठकर खड़ा हो जाएगा, बोलेगा ये आयत ये नहीं है, आयत ये है। और ऐसा उन्वान आपने कभी देखा है कि अभी हम बात करते हैं तो मेरी बातें चल रही हैं, कहीं ऐसा है कि एक ही लफ्ज से मेरी बातों की लफ्ज खत्म हो? जैसे कुरान मजीद एक मौजूदा है, अल्लाह का कलाम है, एक मौजूदा है। जैसे आप सूरह नास पढ़ते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, किससे खत्म है? लास्ट बात किससे खत्म है? सीन से। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सारे अल्फाज किससे खत्म हुए? सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की बात हुई है। 3 बातों में अल्लाह ने सब्जेक्ट को खत्म किया। कौन सा? 3 आयतों में सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, किससे खत्म है? रात से खत्म है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, किससे खत्म है? रात से खत्म है। ये कुरान मजीद एक मौजूदा है, और जब सूरह नास सीन से शुरू हुआ तो सीन से ही खत्म होगी बात, मगर सब्जेक्ट है, बात है। मगर सूरह कौसर रात से खत्म होता है तो रात से ही खत्म होता है। मगर सूरह बकरा, सुभान अल्लाह, सूरह बकरा कितनी आयतें? 280 आयतें, सिर्फ सारा सब्जेक्ट नून से खत्म है। सुभान अल्लाह, युकिनून, युमिनून, यालमून, तालमून। आपने कभी गौर किया इस बात पे? गौर किया है ना? ये मौजूदा है अल्लाह का, क्योंकि वो हुदूद से आगे कोई भी नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए अल्लाह की कलाम जो है ऑथेंटिक है, अल्लाह ताला उसको नाज़िल किए ही। इंसानों के कलामों में कभी पेशी हो सकती है, अच्छी बात है, कुरान के बराबर है, हदीस के बराबर है, तो सीने को लगा कर ले लो। अगर एक्स्ट्रा बातें तुम्हारे सामने आते हैं तो उन बातों को छोड़कर अल्लाह की बातों पर अमल करो। बार बार अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान को हमने सारे आलम के लिए जो है जिक्र बनाने पैदा कर दिया। और अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं क्या इसको तुम समझने की कोशिश नहीं करते? क्या तुम इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते? जो बंदा कुरान मजीद को समझ लिया, उसने एमबीए कर लिया, उसने साइंस समझ गया, उसने मैथ्स समझ गया, और वो दुनिया को समझ गया, आखिरत को समझ गया, आने वाला मरने के बाद वाली जिंदगी क्या है उस जिंदगी को भी समझ गया। इसके अंदर जो तालीम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कलाम के अंदर यहाँ तक के मच्छर का जिक्र, मक्खी का जिक्र, घोड़े का जिक्र, चुंटी का जिक्र, जमीन का जिक्र, आसमान का जिक्र करके अल्लाह ने अपनी तौहीद को बयान कर दिया। खुद बताता है कि अगर अल्लाह की तारीफ लिखने चले जाओ तो अगर समंदर को इंक बना लो, जमीन और आसमान को पेपर बना लो, और सारे जमीन के जितने दरख्त हैं उनको कलम बना लो, तो जब भी ये इंक खत्म हो जाएगी, वो पेपर खत्म हो जाएंगे, ये कलम खत्म हो जाएंगे, मगर अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि जमीन को पैदा करने वाला एक अकेला कौन है? अल्लाह है। आसमान को पैदा करने वाला एक अकेला कौन है? अल्लाह है। सितारों को, चांद को, सूरज को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। देखो यहाँ पर सिर्फ जामिया है, एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ 4-5 जिम्मेदार होते हैं। तो सुबह में कोई बोल रहे थे 9 बजे से फंक्शन स्टार्ट होगा, है नहीं? दूसरे बोलते हैं नहीं 9:15 पे ठीक रहेगा। मैं कहती हूँ नहीं 10 बजे ठीक रहेगा, क्योंकि सब लोग जमा हो जाएंगे। यहाँ क्या है, इरादे फैसले अलग अलग होते हैं, मगर वो यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाला, वो अल्लाह जो जमीन और आसमान को कंट्रोल करने वाला, क्या सूरज को कभी 9 बजे पैदा किया है? देखा है तुमने निजाम को? क्या सूरज को 9 बजे पैदा किया है? अरे कितने लोगों की मौत हो रही है, फलस्तीन में झगड़े हो रहे हैं, हिंदुस्तान में मर रहे हैं, फलाने जगह पे क्या क्या हो रहा है, मगर कभी सूरज 9 बजे पैदा हुआ है क्या? उसके अंदर खत्म देखे हैं आप? क्या आदमी थक गया हो काम करके, या सूरज को 9 बजे पैदा करता? बिल्कुल नहीं, ये अल्लाह है। कभी जमाने में आपने देखा है कि सूरज 9 बजे पैदा हुआ? अगर गुरूब 9 बजे हुआ रात में हुआ है? नहीं।
सूरज का टाइमिंग सबके लिए, चांद का टाइमिंग सबके लिए, सितारों का टाइमिंग सबके लिए। ये बरहमों को हमने बना दिया है, अल्लाह ने नहीं बनाया। अल्लाह बार बार कुरान मजीद में पुकारते या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया, आसमान को छत बना दिया, उस आसमान से पानी को बरसाते ही, उसमें से नबातात निकालते ही, ताकि तुम खाओ पियो, जमीन पर खुशी से रहो, मगर अल्लाह के अहकाम को पूरा करो और अल्लाह के हुक्मों को पूरा करो। अब हम कभी कभी समझ जाते हैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का मतलब क्या है कि सिर्फ तस्बीह पढ़ते बैठ जाओ और दूर से हुए तस्बीह पढ़ लो। हमने 1600 तस्बीह पढ़ लिया, हमने सुभान अल्लाह पढ़ लिए तो 10 नेकी मिल गए, हमने फलाना पढ़ लिए तो इतने नेकी, बेशक नेकी है, अल्लाह के नाम में नेकी है, बिस्मिल्लाह में नेकी है, सुभान अल्लाह में नेकी है, मगर वो नेकियां वो नहीं है जो अल्लाह कहते हैं। अल्लाह कहते हैं गरीबों को सीने से लगाना, यतीमों को सीने से लगाना, यतीमों की मोहब्बत करना, गरीबों की मोहब्बत करना और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना और नेक काम करना, हर बीमार की इयादत करना, हर किसी के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये दावतें दे रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये बातें हम कैसे पहुंचाएं लोगों तक? अल्लाह ताला सूरह यासीन में फरमाते हैं। सूरह यासीन के बारे में हम सब क्या फरमाते हैं? सूरह यासीन पढ़ लो शिफा हो जाएगी, सूरह यासीन पढ़ लो घर में बरकत आ जाएगी, सूरह यासीन पढ़ के दम कर लो बुखार चले जाएगी। क्या ऐसा है? ऐसा अल्लाह ने बताया है? नहीं। क्या बताया अल्लाह ने? यासीन वल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान की, हिकमत से भर गई है, हिकमत से भर गई है ये कुरान। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक मैं मेरे नबियों में से। इसको बोलते हैं अल्लाह ताला इशारा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि बेशक तुम नबियों में से हो। फिर अल्लाह क्या जवाब देते हैं? अला सिरातिल मुस्तकीम, क्या है तुम सीधी राह पर हो। तंजील अज़ीज़ुर रहीम, ये कुरान तुम्हारे मेहरबान मालिक की तरफ से नाज़िल हुआ है। किस लिए नाज़िल हुआ है? क्यों नाज़िल हुआ है? लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, जो लोग गफलत में पड़े हैं, इस कुरान को समझे नहीं है, उन सबको जाकर समझाओ और जो गफलत में पड़े हैं उनको जगाओ। क्या बोलकर जगाना है? कि तुम्हारी मरने के बाद वाली जिंदगी है। कई कौमें इस बात का यकीन नहीं रखते कि हमारी मौत के बाद वाली जिंदगी है, मगर अल्लाह फरमाते हैं बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, छोटी जिंदगी है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, ये आखिरत की जो जिंदगी है बहुत बड़ी जिंदगी है और हमेशा के लिए रहने वाली जिंदगी है। इन हादा नबी लूला, क्या ये बात मैं यही तरीके से बताया हूँ कुरान में? नहीं। सूरह इब्राहीम और मूसा, हमने इब्राहीम और मूसा के विषय में बता दिया कि दुनिया की जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, मगर आखिरत की जो आने वाली जिंदगी है वो क्या है? हमेशा के लिए खाए रहने वाली जिंदगी। सुभान अल्लाह। और वो जिंदगी 100 साल के बाद भी खत्म नहीं, 1000 साल के बाद भी खत्म नहीं, 500 साल के बाद भी खत्म नहीं, करोड़ों साल के बाद भी खत्म नहीं। जब मौत आती है उसके बाद ये जिंदगी शुरू हो जाती है। उस जिंदगी की शुरुआत के लिए अल्लाह ने फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार, बेशक ऐ रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत की जिंदगी में भी भलाई अता फरमा। तो क्या हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में जो है हमारे लिए भलाई अता फरमाए, और खास कर से ऐसे चीजों से बचो जो शिर्क करते हैं, बिदअत करते हैं। लोग कहते हैं कि फलाने मौलाना आए, हाथ देखकर बता दिए कि हाथ में क्या लिखा है, तकदीर में क्या होने वाला है, कल क्या चलने वाला है। ये बात को अल्लाह ताला हराम करार दिए कुरान में। सूरह अनाम की आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला 4 बातों का जिक्र करते हैं। आप नोट कर लेना, इसको याद कर लेना। नंबर 1 क्या बताते हैं अल्लाह ताला? क्या बताते हैं नंबर 1? आए मोहम्मद, लोगों को 4 बातों का ऐलान कर दो। नंबर 1 कि तुम एक खिचड़ी के छिलके के भी मालिक नहीं हो। इसको बोलते हैं अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुन रहे हो, तालिबान समझ में आ रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं खजूर मालूम है, खजूर की बीज, उसके ऊपर एक पतला सा खिचड़ी होता है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम उस खिचड़ी के भी मालिक नहीं हो। आए मोहम्मद, लोगों को कह दो कि तुम उसके भी मालिक नहीं हो। उसके भी मालिक कौन है?
अल्लाह रब्बुल आलमीन। और दूसरा ये बात कह दो कि तुम गैर की बातों को जानने वाले नहीं हो। अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं कहा कि मैं गैर की बात को जानता हूँ, मैं फलाना बात देखना मुझे आता है, मैं ये बात बताता हूँ। और तीसरी बात ये बात का ऐलान कर दो कि तुम गैर की बातों को जानने वाले नहीं हो। और तीसरा इस बात को ऐलान कर दो कि जो अल्लाह के कलाम में नाजिल होता है मैं नूर भी नहीं हूँ। अल्लाह के रसूल ने ये भी कह दिया कि मैं नूर नहीं हूँ, यानी फरिश्ता नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और चौथा, जो आयत अल्लाह की तरफ से नाज़िल होती है मैं उस पर अमल करने वाला हूँ। तो अजीज तालिबा, बहुत ज्यादा जो है हमको कोशिश करना है कि अल्लाह की तौहीद पर हम कायम रहे, ईमान पर कायम रहे। हमारे सारे माँ बहनें यहाँ जितने भी आए हैं, हमारे भाई जितने भी आए हैं, उन सब के लिए मैं मुबारकबादी पेश करती हूँ। आपके बच्चियां आपके अनमोल खजाने, ये एक खजाने को, इसकी रोशनी को आप पूरी दुनिया में रोशनी दे सकते हो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे। जब बच्चियां काम करने लगे तो हम लोग घर से उनको खोखला बनाना चाहते हैं, उनको कमजोर करना चाहते हैं। बेटा तुमने ये बात कह दिया तो वो गाली दे रही है, वो बातें कर रहे हैं, अब ये बात को बंद कर दो, अब ये काम को कम कर दो। ऐसा नहीं, अल्लाह का काम करने के लिए, सच्चा काम करने के लिए जब कोई भी खड़ा होता है तो जरूर उनको आजमाइश आएंगे, उस पर साबित करते रहना। सबसे बड़े आजमाइश है नबियों पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसी कैसी आजमाइश आई, आग में बैठा के देखेंगे मगर कभी उन्होंने नहीं हुए। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने दुनिया का सताना सताया मगर उन्होंने कभी नहीं हुए। ईसा अलैहिस्सलाम को उनको मेल मार दिए गए मगर उन्होंने कभी अपनी बात से नहीं हुए। इंशाअल्लाह हमको ईमान की दौलत, ईमान की ताकत को इतना आगे बढ़ाना है और अल्लाह के दीन को आगे पहुंचाना है। तो अल्लाह के दीन को आगे पहुंचाने का एक ही जरिया है अल्लाह का कलाम। अल्लाह के कलाम की एक आयत पढ़कर आप लोगों में जिक्र करेंगे। अल्लाह का कलाम ही सहाबा ने जिक्र किया, अल्लाह का कलाम ने मुहद्दिसीन ने जिक्र किया, अल्लाह के कलाम को सारी दुनिया ने जिक्र किया। तो जब तुम इस पर कायम रहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। मैं वापिस तो इंशाअल्लाह आप सबके हसनात के तकसीम का वक्त भी हो रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सही सलामत और खुश व मुकर्रम कर दे और आप सबको एक एक आलिमा, एक एक फाजिला नहीं, एक तालिब इल्म नहीं, बल्कि अल्लाह ताला आपको एक दुनिया बना दे इंशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बहुत जल्द जो है आप सब के सब इंशाअल्लाह दीन का काम करने के लिए तैयार हो जाए। बड़ी खुशी की बात है। और जो वालिदैन अपने बच्चों को दीन की तालीम यहाँ भरोसे से छोड़कर पढ़ाएंगे, मैं उन सबको मुबारकबादी पेश करती हूँ। और तमाम जामिया के जिम्मेदारान जो रात और दिन आपके खानों के लिए, आपके कपड़ों के लिए, आपके आने जाने के लिए बहुत सारे मेहनतों के बाद एक साल गुजरता है। 360 दिन ऐसे ही नहीं गुजरते, एक दिन में एक मरहला होता है। सुबह में 800 लोगों का, 1200 लोगों का नाश्ता बनना है, दोपहर में दोपहर का खाना बनना है, रात में रात का खाना बनना है। अगर एक चीज में भी कमी पेशी होती है तो वो दिन गुजरना मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 360 दिन फिर पूरे मुअल्लिमात सब्जेक्ट को अटेंड करना है और तुम्हारे निसाब को कंप्लीट करना है, ये मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इसके पीछे सबकी मेहनतें, आपकी मेहनतें, आपकी वालिदैन की मेहनतें, हमारे मुअल्लिमात की मेहनतें, हमारे जामिया के जिम्मेदारान की मेहनतें, सबकी मेहनतें ही, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि सब मुझे सपोर्ट करने के लिए, ये काम को आगे बढ़ाने के लिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ये प्रोग्राम हमारे जामिया का जैसे सिल्वर जुबली बोलते हैं 25 साल कंप्लीट हो गए। इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बहुत जल्द हम चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी इंशाअल्लाह अरेंज करेंगे। अल्लाह के फजल से इसमें पूरे इंडिया के लोगों को दावत देंगे। आज भी मैं समझती हूँ कि इंडिया के हर स्टेट से हमारे पास मेहमान मौजूद हैं और बच्चियों के भी जाने के लिए टिकट वगैरह का सहूलियत के लिए बहुत जल्द जो है प्रोग्राम को हम इख्तिताम पे पहुंचाना है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।